हेलो। हाँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तुम्हारा नोट्स है। हेल्थ WHO ने कहा फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील विद रिप्रोडक्टिव फिटनेस and process function and system at all stages of life. India one of the first country to develop family planning. First family planning private clinic set up in India, established 1925. 5 later year, government funded the family planning clinic. Family planning plans initiate in 1951 and continue 6-year program. Reproductive and child care health care program launched in October 1997, incorporate new approach as exposed in the internal conference on population and development held at Cairo in 1995. Child survivor and safe motherhood program, न्यू एरियाज ऑन RTI STI। ठीक है। 2012 फर्दर अपग्रेडेड एंड इन 2012 नेम्ड एज RMNCH+A और रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड नॉर्मबॉर्न C चाइल्ड H हेल्थ और A एडोलसेंस। इसका क्या है, क्या कहते हैं, मेजर टास्क बर्थ कंट्रोल, सेक्स एजुकेशन, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्स, awareness, increase awareness about sex abuse, sex related crime, information about reproductive problems, STD, birth defects, promoting research. Amniocentesis, amniotic sac has amniotic fluid which has cells shed off by the embryo. Amniocentesis is performed between 14 to 20 weeks. Down syndrome, hemophilia, and sickle cell anemia are detected by it. Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. Sex is determined, therefore female feticide in India 940 per thousand. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पता ही है, पिछले 1000 साल में पॉपुलेशन बूम कर गया। इंडिया 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड मास एंड इंडिपेंडेंट 350 मिलियन इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है। उनमें 2000 इंडिया 1 बिलियन हो गया पॉपुलेशन ड्यू टू लेस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया एट 10 लाख पीपल एवरी फोर्टनाइट, मतलब 10 लाख पीपल एवरी फोर्टनाइट, मतलब हर साल 5 से 6 करोड़। ठीक है। बाय 2045 और अर्ली इंडिया ओवरटेक चाइना। 49% ऑफ दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू 4 स्टेट, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। India add one Australia every 8 months. Population growth rate, increase population, therefore burden on economy. Average annual growth rate है P2 minus P1 whole upon P1 into N whole into 100. P2 minus P1 whole upon P1 into N whole into 100. P1 बराबर previous population में कितना census, P2 बराबर population in present census और n बराबर number of years in between two census. According to 2011 census, population growth rate less than 2%, that is 20 per thousand per year. हर साल 2% बढ़ रहा है, यानी 1000 में से अगर 1000 बच्चा हो रहा है तो अगले साल 1200 1020 बच्चा हो रहा है। हर साल 20 बढ़ रहा है आउट ऑफ 1000। ठीक है। डबल टाइम 0.69 अपॉन ग्रोथ रेट जो भी ऐसे 2% है, तो उसको सिंपली क्या करना है, 0.69 से उसको डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन तुम्हारा कितने साल में डबल हो जाएगा। और इंडिया का चूँकि ग्रोथ रेट 2% है, तो 0.69 होल अपॉन 0.02 करोगे तो आएगा 33 ईयर्स, मतलब हर 30 साल में इंडिया डबल हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं है, ये पॉपुलेशन का मतलब क्या कहें, एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। आगे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, total number of children born or likely to be born to a woman in her life. Replacement level, the level of fertility at which a population exactly replaces itself from one generation to another without immigration. In development countries,
Replacement level of fertility can be taken as a required average 2.1 children per woman. Migration, movement of people from one permanent home to another is why without leaving country is called immigrants. ठीक है. Age sex ratio, pre-reproductive age, reproductive age, post-reproductive. 3 types of pyramid. पहला वाला ये रहा. एंड एक्सपेंडिंग फ्रॉम फॉर्म इंडिया है 50%. मतलब समझ रहे हो ना, इसमें 50% इंडिया में 25 ईयर से भी कम है, तो बढ़ते ही जा रहा है. लास्ट में बहुत ज़्यादा बल्ज आउट. बेल शेप पिरामिड इस तरह का कुछ दिखता है, मतलब स्टेबल पॉपुलेशन होता है इसका. मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि हल्का सा बस एकदम बिल्कुल ही जो न्यू बॉर्न है उसका कुछ ऐसे ही इस तरह का नीचे तरफ हल्का सा बल्ज आउट, और उसको बेल की तरह कहते हैं. ठीक है. और तीसरा है ऑर्न शेप. ठीक है. इसमें क्या होता है, एकदम सेमी सर्कल होता है दोनों. इसका मतलब एकदम बहुत हाई स्पीड पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रहा है, जैसे सिंगापुर, स्वीडन वगैरह. अच्छा, ये डेमोग्राफिक वाला ग्राफ है. यहाँ पे देखो बर्थ रेट एकदम कांस्टेंट है, डेथ रेट भी एकदम कांस्टेंट है, तो टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट है. पर अभी बर्थ रेट तो कांस्टेंट है, पर अपना डेथ रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है. तो चूंकि डेथ रेट घट रहा है, तो अपना टोटल पॉपुलेशन जो कि येलो मार्क्स है वो बढ़ रहा है. अभी थर्ड पार्ट में देखो, अपना डेथ रेट तो घट ही रहा था, बट अब अचानक से बर्थ रेट घटा. पर बर्थ रेट घटते हुए में भी टोटल पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया. टोटल पॉपुलेशन पे इफेक्ट फोर्थ में जाके दिखा, और जाके भी ये दिखा कि बस स्टेबल हुआ. समझ सकते हो किस तरह का, मतलब प्लानिंग का कितना क्या इंपॉर्टेंस है. Steps to control population statutory raising of marriageable age of female and male to 18 or 21 years. इंसेंटिव्स टू कपल विथ स्मॉल फैमिली. छोटा फैमिली रखने के लिए पैसा दो उसको, मतलब बड़ा फैमिली वाले को नहीं करो जो चाइना किया. कॉन्ट्रासेप्टिव, हम दो हमारे दो स्लोगन्स का यूज़ करो टू कंट्रोल क्या कहते हैं पॉपुलेशन. कॉन्ट्रासेप्शन 5 कारण होना चाहिए. यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव, रिवर्सिबल, और नो और एट लीस्ट साइड इफेक्ट. इसके भी टाइप्स हैं अब 6. नेचुरल मेथड, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूपी, ओरल, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, सर्जिकल. नेचुरल नेचुरल में भी पहला टाइप पीरियोडिक एब्सटिनेंस रिदम मेथड बेस्ड ऑन 3 आइडियाज. पहला आइडिया क्या है, वुमेन ओव्यूलेट 14 डे बिफोर द मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, गिव टेक 2 days फ्रॉम दैट डे. ठीक है, ओव्यूलेशन वाला. ठीक है. सेकेंडली, स्पर्म इनसाइड द फीमेल इज अलाइव फॉर 2 days. ठीक है, इजीली गिव और टेक 2 days. And lastly, the egg can only be fertilized within 24 hours of being released from ovary. ये भी important है. Obtaining from coitus from days 10 से 17 of menstrual cycle. If menstrual cycle is of 14 days, ठीक है. Withdrawal method, coitus interruptus, penis to be withdrawn from vagina right before ejaculation. फेलियर रेट अप टू 25%. बहुत फालतू मेथड. लैक्टेशनल एमेनोरिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंक्रीज लैक्टेशनल फॉलोइंग पार्चुरेशन, हाई प्रोलैक्टेंस सप्रेसेस FSH and GnRH. इफेक्टिव ओनली फॉर अप टू 6 months आफ्टर पार्चुरेशन. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर आ गया एडवांटेज ऑफ नेचुरल मेथड्स. वुमेन एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ देयर बॉडी वर्क्स. पर अनपढ़ का तो वही है, पढ़ना लिखना 22.5. Has no side effects, no requirement of useful drugs and chemicals, relatively inexpensive है. ठीक है. Requirement of cooperation of both partners can be used to prevent a pregnancy as well as help a couple conceive. Disadvantage, fertility rate high if not practiced consistently. Involvement of both partners is essential. No protection against sexually transmitted infection. हाँ, सबसे दिक्कत यही है. Not suitable for women who have erratic menstrual cycle. हाँ, उसके लिए भी नहीं. मतलब देखो, लूटियल फेज तो फिक्स होता है. ठीक है, ये भी याद है, पिछला चैप्टर में क्वेश्चन भी है बहुत सारा कि मतलब 14 दिन फिक्स होता है. ठीक है, बाकी कहीं चीज़ में मतलब चेंज आएगा. बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम, डिस्पोजेबल डिवाइस
मेड फ्रॉम लैटेक्स, लैटेक्स से भी बनता है, रबर से, केवल रबर और लैटेक्स दोनों। एडवांटेज इनएक्सपेंसिव, विजिट टू यू, फ्यू साइड इफेक्ट, प्रोटेक्ट STI HIV। फीमेल ओन ऑफ फेमी शील्ड और फेमिडो मेड अप ऑफ पॉली यूरिथेन और rubber, highly protective against spread of STIs and HIV. Diaphragm, cervical cap and vault. These consist of dome-shaped diaphragm of thin rubber with a rubber-covered metal rim which uh, a spring. ठीक है, जो भी है याद कर लो. It fits obliquely into vagina and covers the cervix, thus blocking the entry of sperms. It increases efficiency if used along with spermicide creams. हाँ ये important है, which contain a 9-nonoxynol. ठीक है, क्या कहते हैं, spermicidal cream. ठीक है, which contain 9-nonoxynol, nonoxynol. IUD या IUCD, intrauterine contraceptive devices. IUD is an effective, reversible and long-term method of contraception which does not require replacements for long period. The device is made up of polyethylene which is impregnated, polyethylene मतलब polythene, which is impregnated with the barium sulfate to render it radio opaque so that it can be detected by X-ray. ठीक है, इसको मतलब बस यही चीज़ को बेरियम सल्फेट के साथ इम्प्रेगनेट कर देते हैं सो एज टू रेंडर इट रेडियो ओपेक बनाने के लिए, मतलब रेडियो ओपेक बना देता है इसको, किससे, बेरियम सल्फेट के साथ इम्प्रेगनेट करके डाला जाता है सो दैट इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बेरियम सल्फेट. टाइप्स ऑफ आईओडी, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लायोसिस. हाँ, नॉन मेडिकेटेड आईओडी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्मोनल आईओडीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों आईओडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉन मेडिकेटेड आईओडीज प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, समझ ही गए हो क्या कह रहे हैं. फर्टिलाइजेशन स्टिल अकर्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा ऑब्वियसली, बस वो इम्प्लांटेशन को हटाएगा. नॉन मेडिकेटेड आईओडी एग्जाम्पल लिपिज लूप. Second, copper releasing IOD. Copper wire is wrapped around vertical stem of the polypropylene frame. Release of copper and suppresses the spermatogenesis fertilization capacity. Example copper T, copper 7, multilode 375. अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना. कॉपर रिलीजिंग आसान है मेरे मतलब क्या कहते हैं, ये हटा किसको सप्रेस करता है, फर्टिलाइजेशन को ही हटाता है, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को घटा देता है, उसको मोटिलिटी भी. खैर, हार्मोनल आयोडीज, दीज डिवाइसेस रिलीज लेवोनोजेस्टेरोल, लेवोनोर जेस्टेरल. तो क्या क्या मिला, लिपिज लूप है एक टर्म, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया एक टर्म, फिर एक नॉनऑक्सीनॉल हो गया एक टर्म, फिर बेरियम सल्फेट और पॉलीथाइलिन यूज होता है आईओडी में, वो भी एक टर्म है. ठीक है, फिर इधर आ गया नया टर्म levonorgestrel, a synthetic progesterone, levonorgestrel, which forms a thick plug of mucus at the cervix. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हार्मोनल आईओडी का LNG-20 प्रोजेस्टास्टेट. ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट. हार्मोनल आईओडी का क्या है एग्जाम्पल, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट. LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट कैन बी यूज्ड फॉर 10 years. हार्मोनल आईओडी का बात हो रहा है. लिपिज लूप हो गया एकदम फालतू इफेक्ट, केवल ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन केवल एक में होगा तीनों में से, वो है नॉन मेडिकेटेड आईओडी में. कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हाँ 375. और अपना हार्मोनल आईओडी LNG-20 प्रोजेस्टासेट, और इसमें लेवानोजेस्टेरॉल होता है, क्या कहते हैं वो, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है. ठीक है, अब तो आसान है. Oral contraceptives are birth control pills are used to prevent pregnancy. Combination of estrogen and progesterone work by preventing ovulation. Progesterone also changes lining of uterus to prevent implantation. Progesterone also changes the lining of uterus to prevent implantation.
Progesterone also changes mucus at the cervix. They don't prevent spread of STIs and HIV. Oral contraceptive pills are widely viable. ठीक है, oral contraceptive pills are widely viable. Combined oral contraceptive pills contains estrogen and progesterone and is taken once per day. जैसे मालाडी combined oral contraceptive pills contain progesterone and estrogen and is taken once per day. Example मालाडी माला in overall. ओविराल मालाडी माला N. ठीक है. The progesterone only pill, केवल progesterone pill, contains progesterone and is also taken once per day. Example Norlevo और Pregnan. Norlevo और Pregnan. ठीक है, Norlevo और Pregnan. ठीक है, Norlevo और Pregnan. मालाडी माला इन ओवरऑल, Norlevo Pregnan. और इधर क्या था, LNG20 प्रोजेस्टेरोस्टेट और कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 और लिपीज लूप. ठीक है, और इधर क्या था, लेवेनोजेस्टेरॉल. और इधर क्या है, नॉरलेवो और प्रोगनॉन. ठीक है. ओरल बर्थ कंट्रोल टू बी टेकन फॉर 21 days स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 days of the menstrualized. After a gap of 7 days, the same pattern is repeated. Menstruation occur during this 7-day gap. Emergency contraceptive within the 72 hours. ठीक है, यूज होता है, मतलब 3 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगा. बट हाँ ठीक है, कुड भी मिनिम पिल और कॉम्बिनेशन पिल दोनों हो सकता है. प्लेसिंग एन आईयूडी इन द यूटरस. प्लेसिंग एन आईयूडी इन द यूटरस. सिंगल डोज ऑफ RU 486 या फिर मीफेप्रिस्टोन. हाँ ये इंपॉर्टेंट है. सिंगल डोज ऑफ RU F486 या फिर मिफप्रिस्टोन. ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. प्लेसिंग एन आईयूडी इन द यूटरस. ठीक है, बट हाँ प्लेसिंग एन आईयूडी इन यूटरस क्यों, क्योंकि विद इन 72 आवर्स. नहीं तो फिर पता है ना, एक हफ्ता मतलब अगर हो भी तो फिर तो नहीं कह सकते. पर अगर इसीलिए 72 आवर्स का मतलब टैगलाइन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद हेल्प नहीं कर सकते कुछ खास. कुड बी मिनी पिल और कॉम्बिनेशन पिल. प्लेसिंग आयोडीन यूट्रस. सिंगल डोज ऑफ RU 486 या फिर मेफेस्ट्रोन. RU 486 या फिर मिफप्रिस्टोन. ठीक है. नाउ नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल ही है बट नॉन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड नहीं है, यानी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है. अब Centroman is a synthetic non-steroidal contraceptive pill marketed under the name Saheli. Centroman. It was developed by scientists at the Central Drug Research Institute, Lucknow, India. इंडिया ही है. ठीक है. World's first non-steroidal contraceptive pill है, obviously. It is started on the first day of the menses and taken 2 times weekly for 12 weeks and thereafter once per week. It is started on the first day of the menses and taken 2 times weekly for 12 weeks and then for बाकी जिंदगी per week. One per week. It is anti-estrogenic, therefore prevent implantation. हाँ ठीक है. SERM selective estrogen receptor modifies. ठीक है, to overcome any inconvenience of daily compliance of contraceptive. Injectables and implants were developed. An injection of synthetic progesterone provides contraception for 3 months. Example Depo-Provera. Subdermal implants contain synthetic progesterone from which progesterone is released slowly and provide contraception for 5 years. Example Norplant contains 6 matchstick sized capsules filled with synthetic progesterone. Norplant में important क्या है, 6 matchstick size capsule. ठीक है, filled with synthetic progesterone. सबडर्मल मतलब जो हाथ है उसमें के हाथ की स्किन है, स्किन के भीतर मसल है, तो जो एपिडर्मिस के अंदर साइड डर्मिस आता है
उसी सब डर्मल एरिया में मतलब इम्प्लांट, जैसे ये नॉर प्लांट है जो 6 मैचस्टिक जैसा कैप्सूल है जो पूरा दनादन प्रोजेस्टेरोन से भरा हुआ है, उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। विच प्रोजेस्टेरोन इज फॉर 5 ईयर। ठीक है, अच्छा 10 ईयर क्या चलता था? LNG-20 प्रोजेस्टास्टेट, और इसमें क्या होता है? लेवेनोजेस्टेरोल। ठीक है, फिर इधर क्या था कि माला डी था, माला एन था, ओवरऑल था, और फिर एक नॉरलेवो और प्रोगेनोन था। ठीक है, और तो कुछ था हाँ, फिर RU-486 है, और फिर मिफप्रिस्टोन है, यानी मिफप्रिस्टोन सेम ही चीज़ है। खैर आगे, हाँ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन यानी परमानेंटली वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, medical termination of pregnancy MTP, medical termination of pregnancy is also called induced abortion, medical way of getting rid of unwanted pregnancy. Any qualified gynecologist can perform MVP, medical termination of pregnancy. मैम टीपी, सॉरी MVP बोल दिया, MTP है। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करते हैं। ठीक है, MTP ऑलवेज शुड बी प्रेफर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, इसका रीज़न पता ही है क्यों है। MTP इज अलाउड फॉर फॉलोइंग कंडीशंस ओनली: फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तब, पॉसिबल हैजार्ड्स ऑन द फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय द रेप और द इंसेक्ट इंसेक्ट क्यों, अच्छा इंसेस्ट पता नहीं कुछ होता है। ठीक है, पॉसिबल हजार्ड टू हेल्थ ऑफ ग्रोइंग फीटस, नियरली 45 से 50 मिलियन MTPs एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 with some restriction to avoid its misuse. MTP Act was amended in 2017 by Government of India with intention of reducing incidence of illegal abortions and consequently maternal mortality and morbidity. पता है ना क्यों? फीमेल फेटिसाइड। MTP is legally permitted up to 20 weeks of gestation. Induced abortion can be done in several ways. Abortion pill RU-486 खिला दो, यानी मिफेस्टेरोन, अभी फिर से पढ़े हैं। वैक्यूम एस्पिरेशन करा दीजिए, डायलेशन एंड कॉपर रेटेज करा दीजिए। ठीक है, और सलाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंडीशन में जाके मार दीजिए। बहुत सारा अच्छा अच्छा तरीका है चारों: वैक्यूम एस्पिरेशन, डायलेशन एंड कॉपर रेटेज, सलाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अबॉर्शन पिल है RU-486 मिफेस्टेरोन। नाउ क्या ये, एक सेकेंड, हाँ बढ़ाने दो। हाँ हाँ, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कॉन्ट्रासेप्शन खत्म हो गया भाई, सारा का सारा वो सब अपना केमिकल का नाम याद कर लो। केमिकल सारा नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स भी हल्का हल्का, जैसे एक बार और रिवाइज करते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड लिपिज लूप और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन मतलब इम्प्लांटेशन बंद करता है। कॉपर रिलीजिंग स्पर्म को ही घायल कर देता है। कॉपर 7 मल्टीलोड 375। अब हार्मोनल IUD हो गया लेनोवोजेस्टेरोल वाला, जिसमें LNG-20 आ गया, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, ये होता है 10 साल का। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में मिक्स में हो गया अपना माला डी, माला एन, और ओवरऑल, और प्रोजेस्टेरोन ओनली में हो गया नॉरलेवो, प्रोगेनन। ठीक है, और फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आ गया RU-486 या फिर मिफप्रिस्टोन, और फिर नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन में सेंटक्रोमैन, सहेली को ही कहते हैं। अच्छा, इसका फैक्ट है कि पहला दिन लेते हैं, ठीक है, और 2 बार लेते हैं वीक में फॉर 12 वीक, 12 हफ्ता के लिए 2 बार हफ्ता में, और उसके बाद हर हफ्ता 1 बार। पहला इंडिया का लखनऊ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, इंडिया। अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इधर, सिंथेटिक इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन कंट्रासेप्शन फॉर 3 महीना। ठीक है, 3 महीना, डिपो प्रोवेरा। अब सबडर्मल इम्प्लांट 6 मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल फिल्ड विथ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन नॉर प्लांट
5 साल, मतलब प्रोवाइड कर 5 साल। नॉर्प्लांट यानी सब डर्मल वाला जो 6 मैस्टिक साइज वो 5 साल। फिर डोपा प्रेभेरा 3 महीना, ठीक है। हाँ अब यह इधर 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 सब है फॉर्मूला वॉर्मूला। चलो आ गया। हाँ अब मेन एन एस टी आई और वेनरल डिजीज और RTI, reproductive tract infection, is an illness that has significant probability of transmission between human by means of sexual contact. Though all are vulnerable, very high among 15 to 24 years. STI cause of STI are bacteria, protozoan, virus. Bacteria, protozoan, virus. Each of them will be dealt very briefly in the next reason. STI, causes of STI, ठीक है। Nearly 30 types of STI including क्लैमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड, फिर हेपेटाइटिस बी, जनरल हार्पिस जेनराइटल, वार्ड्स, HIV एड्स हो गया, और एक और है ट्राइकोमैनियासिस। कॉमन सिम्टम्स ऑफ STI, कॉमन सिम्टम्स ऑफ सभी STIs: itching around vagina and or discharge from vagina for women, discharge from penis for women, penis during coitus or when urinating, ठीक है, pain during coitus or urinating, canker sores, painless red sores on the genital area, anus, tongue and or throat, scaly rash on palms and soles, small blisters that turn the scabs on the genital area, swollen glands, ठीक है, fever and body aches, soft and flesh colored warts around the genital area, flesh मांस colored, ठीक है, लाल। Now sequence of STIs: pelvic inflammatory disease, miscarriages, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, हाँ cancer of reproductive tract. Pelvic inflammatory diseases, miscarriage and spontaneous abortions, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility and cancer of reproductive tract. बैक्टीरियल STI सबसे पहले आ गया क्लैमिडियासिस, caused by infection with Chlamydia trachomatis. It is caused by causes cervicitis in the women and urethritis in both men and women. Chlamydial infection, female, serious PID, pelvic inflammatory disease, tubal factor, infertility, ectopic pregnancy and chronic pelvic pain. Diagnosis: urine test for chlamydial DNA and ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया एंटीबायोटिक्स। लॉन्ग टर्म अगर हो गया तो स्टेरिलिटी भी आ जाएगा। इन्फेक्शन कैन पास टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ, चिल्ड्रन को ड्यूरिंग बर्थ जा सकता है। अच्छा, सारे STI में बहुत सारे में मतलब चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ वाला जितना भी उसको मार्क करते चलना, क्योंकि चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ वाला एक है अलग क्लासिफिकेशन, ऐसे भी कर सकते हैं सब में, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। गोनोरिया, निसेसेरिया, गोनोरिया ग्रो ऑन द म्यूकस एरियाज, यूरेथ्रा मेल फीमेल एंड रेस्ट फीमेल ऑल, ठीक है। फीमेल में सब जगह होता है और म्यूकस एरिया और यूरेथ्रा में मेल फीमेल दोनों में होता है, और बाकी सारा जितना भी है तरह का म्यूकस एरिया, बाकी सब वाला एरिया सब फीमेल के लिए, ठीक है। मेल में केवल यूरेथ्रा में गोनोरिया। बैक्टीरिया ग्रो ऑन माउथ, थ्रोट, आइज, एनस, ठीक है। इन वुमेन सर्विक्स मोस्ट कॉमन साइट। लॉन्ग टर्म PID, स्टेरिलिटी। नो ब्लाइंडनेस ऑफ चाइल्ड एंड पासिंग ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। हाँ 1% AgNO3 इन द आइज ऑफ द चाइल्ड डालते हैं टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। गोनोरिया से ब्लाइंडनेस हो सकता है जब बच्चा जन्म ले रहा हो, इसीलिए 1% AgNO3 डालते हैं इन द आइज ऑफ द चाइल्ड टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट था गोनोरिया का हल्का सा। हाँ डायग्नोसिस है वही सब, डायग्नोसिस कुछ खास पूछता नहीं है बट देख लो। एग्जामिनेशन ऑफ पेनाइल डिस्चार्ज, सेरेविकल सिक्रीशन, यूरिन टेस्ट फॉर DNA ऑफ बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। सिफिलिस यानी स्पाइरो केम बैक्टीरिया एक्स अपना ट्रेपोनोमा पैलिडम। अभी इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है। स्टेज 1 अगर 2 से 8 हफ्ता
स्टेज 2 6 हफ्ता से लेके 6 महीना, 1.5 महीना से 6 स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 हो गया 2 से 8 हफ्ता। आफ्टर द कॉन्टैक्ट एंड कैंकर एट द साइट बन जाता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड लिम्फ नोड्स इन द ग्रोइन एरिया स्वेल। स्टेज 2 अगर 6 हफ्ता से लेकर के 6 महीनों तक फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर, वाटी ग्रोथ में अपीयर। पहले तो केवल कैंकर और इसमें फिर वाटी ग्रोथ और ये सब। पहले में लिम्फ नोड केवल स्वाइन ग्राउंड एरिया में स्वेल किया। स्टेज 3 लेसन्स ऑन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स में भी लेसन आ जाता है, लेसियन। अब आगे जो स्टेज 3 है उसका एक और बात है कि ये इफेक्ट कर सकता है नर्वस सिस्टम को, और ब्लाइंडनेस और ब्रेन डैमेज बहुत भयंकर वाला करता है सिफिलिस को, इसीलिए न्यूरोसिफाइलिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ा गया, मतलब 6 महीना तक में अगर पकड़ा गया, फ्लू लाइक सिम्टम, वार्थी ग्रोथ में अपीयर, लिम्फ नोड इन द ग्रोइन एरिया स्वेल, इस तरह का चीज़ में पकड़ा गया तो इट कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक। स्टेज 3 में हो गया तो मरेगा, ठीक है। स्टेज 3 में हो गया तो मौत फिक्स है। एंड और स्टेज 3 में जाने के बाद ये इन्फेक्शियस स्टेज नहीं रहता। स्टेज 3 वाला जो आदमी है होता है वो किसी और को नहीं फैला सकता सिफिलिस। डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई और बैक्टीरिया फ्रॉम अ कैंकर, ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड वासरमान्स टेस्ट और VDRL टेस्ट, यानी क्या है, हाँ देखो 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 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेरियल डिजीजेस कहते हैं STD को, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैब टेस्ट, ठीक है। इसको वासरमैन टेस्ट कहते हैं। काम का यही है कि तीनों का टेस्ट डायग्नोसिस एक दिन पहले भी तुम देख सकते हो। मेन चीज़ है कि 6 से कितना दिन, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, वैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कैन पास टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियल डिजीज जो हुआ उसमें तीनों का तीनों जो अभी तक पढ़े, तीनों का तीनों गो इनटू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग बच्चा पास, ठीक है। कैन कॉज ब्रेन डैमेज, ब्लाइंडनेस एंड डेथ, ब्लाइंडनेस तो करेगा ही, ठीक है, ब्रेन डैमेज भी किए करेगा ही, और डेथ, अच्छा हाँ डेथ तो करेगा ही। तो ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज और डेथ, इसको न्यूरोसिफाइलिस भी कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रेन डैमेज करता है इसीलिए। कैंक्रोइड यानी हाईली कंटेजियस येट क्योरेबल कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बहुत कंटेजियस है बट क्योरेबल है, बाय कॉज्ड बाय बैक्टीरिया है। हीमोफिलस ड्यूक्रेई, ठीक है, कॉजेज अल्सर्स, यूजुअली ऑफ द जेनाइटल का अल्सर, दूसरा अल्सर होता है ये। swollen पेनफुल lymph glands और वेज इन इंग्वाइनल बॉडीज, इंग्वाइनल बॉडी समझ रहे हो ना, इंग्वाइनल कनाल ह्यूमन में जो है, जो डिसेंट में हेल्प करता है टेस्टिस के। तो क्या है, swollen पेनफुल lymph gland और इंग्वाइनल बॉडीज। लेफ्ट अनट्रीटेड कैंक्रोइड में फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अनट्रीटेड रह गया कैंक्रोइड तो HIV हो सकता है। डायग्नोसिस, केमिकल एग्जामिनेशन बाय कल्चर मेथड। तो भाई सिम्फाइस, गोनोरिया, क्लैमिडियासिस, सिफाइलिस तीनों बच्चा में जा सकता है। स्पेशली गोनोरिया वो अंधा कर सकता है, इसीलिए AGNO3। अंधा ये भी कर सकता है, सिफाइलिस भी, ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, डेथ। और बैक्टीरियल क्लैमिडियासिस जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, पर वो भी हो सकता है बच्चा को अगर पास करे बच्चा रिप्रोडक्टिव कैनाल से। Viral STEs, genital herpes caused by herpes simplex virus, HSV2, HSV2, and flu-like symptoms, small painful blisters that can leave painful ulcers behind. Blisters subside, but the virus remains. Symptoms recur periodically. Diagnosis, examination of blisters, lab test on the fluid from the secreted sore to detect increase of virus, blood test for anti-chemicals, ट्रीटमेंट हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स कैन ईज सिम्टम्स बट क्योर तो नहीं है, सबको पता है। कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV2, flu-like symptoms, small fangulation, relief, painful ulcers appear. Blisters subside, but virus remain. Symptoms recur periodically. मतलब
सिम्टम जो है, जो पूरा प्रोसेस है, दानादन होते रहेगा। डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन, lab test on fluid from the secretion to detect presence of a virus, blood test for एंटी एंटीबॉडी, ठीक है। ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ड्रग्स कैन easily symptoms but cannot be cured. Infection can pass to fetus causing miscarriage. Stillbirth can cause brain damage in the newborn. Viral history, genital warts by human population, virus HPV. इसमें से क्या है? Small warts on the sex organs may cause irritation and itching, discharge, burning, bleeding. हाँ, in women it is diagnosed by pap smear test. जेनिटल वॉर्ड और अपना ये हो गया दो ठो जेनिटल वॉर्ड, जेनिटल हर्पीस। वुमेन में जेनिटल वॉर्ड बाय पैप स्मीयर टेस्ट, ये मेन चीज़ है। पैप स्मीयर टेस्ट जेनिटल वॉर्ड फॉर फीमेल। इन ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल कैंसर एंड पेनाइल कैंसर। 30%, 30 से भी ज़्यादा स्ट्रेंसेस के डीएनए में जेनिटल वॉर्ड्स हो जाने पे जो कैंसर करा देंगे, सर्वाइकल पेनाइल कैंसर। इन्फेक्शन कैन पास टू infant during childbirth. Infection can pass to infant during childbirth. Hepatitis B, hepatitis B virus, devastated circular DNA virus है। Spurs spread hepatitis B, hepadonavirus, double-stranded DNA virus spread through sex, bed, fusion, blood fusion, injecting serious, no cure but preventable by vaccine, liver jaundice। ठीक है, सबका मेन ये है, इन्फ्लेमेशन होता है हेपेटाइटिस बी में। जेनिटल वार्ड में स्मॉल वार्ड्स आ जाएगा ऑन द सेक्स ऑर्गन। वायरल एसटी में जेनिटल हर्पीस में आ जाएगा ब्लिस्टर वायरस। लिवर jaundice, liver carriers. No cure but preventable by vaccine. AIDS caused by HIV, areas where spread of blood सब। Immune system is compromised to make the body susceptible to many other infection. No cure, no vaccine yet. अब प्रोटोजोन STI, ट्राइकोमेनियासिस बाई ट्राइकोमेनियास वैजिनालिया, ठीक है। ट्राइकोमोनास वैजिनल डिस्चार्ज अनप्लीजेंट स्मेल होता है। वैजिनल स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, जेनिटल बर्स्टिंग, इचिंग, प्रोटोजोन STI का है, ठीक है। जेनिटल रेडनेस, स्वेलिंग, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, पेन ड्यूरिंग कोइटस या फिर क्या कहते हैं, डायग्नोसिस हो गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कल्चर। STIs prevention and cure, avoid with unknown partner, multiple partner, always use condoms, qualified doctor if doubt. Most are the curable by antibiotic except hepatitis B, genital herpes and HIV. In infertility, failure to achieve pregnancy after 2 years of regular intercourse without use of any contraceptive can be termed primary if never conception. प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कंसेप्शन ही नहीं हो, मतलब हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब इफ पेशेंट हैज फेल कंसीव इवन आफ्टर सेक्स। इनफर्टिलिटी फिजिकल रीजन बता रहा है। इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? फिजिकल, कंजेनाइटल डिसीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। मेल इनफर्टिलिटी, हाँ दिस पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट। नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 50 to 150 million sperms per milliliter. Male infertility, azoospermia implies no spermiation in sperm, no sperm in semen. Azoospermia, no sperm in semen. Oligospermia, low sperm count.
20 मिलियन पर ml से भी कम। एस्थीनोस्पर्मिया, नो मोटाइल स्पर्म और डिमिनिश्ड मोटिलिटी। नेक्रोस्पर्मिया, स्पर्म आर डेड। टेराटोस्पर्मिया, abnormal morphology of sperm, autoimmunity against sperm, इम्पोटेंस, नो इरेक्शन। इम्पोटेंस मतलब नो इरेक्शन। ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म भी हो सकता है इनफर्टिलिटी के कारण। टेराटोस्पर्मिया, अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। नेक्रोसोमिया मतलब डेड हो गया स्पर्म। और एस्थेनियोस्पर्मिया मतलब नो मोटाइल स्पर्म। एस्थेनो मतलब मोटाइल नहीं है या डिमिनिश्ड मोटिलिटी है। टेराटोस्पर्मिया मतलब अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकता है एन ओव्यूलेशन, डैमेज टू फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस डैमेज, सर्विक्स डैमेज, क्रोनिक इल हेल्थ स्पेशली थायराइड डिसफंक्शन, हार्मोनल, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन, हाइपर प्रोलैक्टिनेशन, लैक्टिनेमिया, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। तो ये था चैप्टर। ये लास्ट पेज वाला है, शायद वो क्वेश्चन के साथ डाल देंगे।